This is a very short issue. The point here is the state is in appeal as against the impugned judgment which says consider us also to be, because in pursuance of NCTE notification. You are the ones who have 18 months. 18 months. Just the impugned judgment merely says consider them. It's another matter whether I'll be selected or not. They run the course. I undergo the course. I'm a in-service candidate. That 18 months is only for in-service who were. Yes. What's that? That is when the High Court has very clearly. I would have some NMD. I'm an in-service candidate, and this is only benefit only for us because we couldn't do the regular course, not face-to-face. So this is the distance education for us, which was specifically designed an NCTE approved course. Are you in services? In a private school and in a aided school. You are still working. Some of them are not working. Some of them are not working. But this was only to Insurance have to continue service. This is for us to continue in service. Continue service. But some of them have moved as not the private schools. After this, some of them are not in therefore we were having some urgency in get this back. You are not in service, then you are not entitled to. Therefore, Lord, my humble submission is since the selection is not yet over and there are still posts vacant, therefore there is an urgency in this matter. Otherwise, you not Consider it. consider putting it on an early date, because your lordships will be in. Immediately after Dasara vacation के बाद immediately after Dasara vacation. Very well. Service is also not complete for some. Service is also not complete. Sorry. The report is service is also not complete. But we are appearing for all the respondents in department. Service is complete. Okay, R9 is one of the features. We'll find out. Codemaster some date. Lordships are giving me some date. We said immediately after Dasara Very vacation. well. Top of the board. Our only prayer is that we don't oblige. नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं सुरेंद्र सिंह बोरा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, बीएड वर्सेस एनआईओएस डीएलएड सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कल 3 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई। तो थोड़ी सी 5-7 मिनट की जो भी सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट में एनआईओएस डीएलएड की एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी और इस पूरी प्रक्रिया मामले में जो भी मामला रहा है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा एक नई सुनवाई की डेट दी गई है और वो डेट है 31 अक्टूबर 2023, यानी कि विश्व एकता दिवस भी उस दिन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, तो उस दिन ये सुनवाई होगी। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। और सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि कल जो महत्वपूर्ण सुनवाई हुई तो उसमें 2 महत्वपूर्ण पॉइंट आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा और आप लोगों के सामने भी आए। माननीय जजों ने एनआईओएस डीएलएड के वकीलों से इन सवालों पर जवाब मांगी। ये आपको पता है कि किस तरीके का सवाल था और कौन से महत्वपूर्ण 2 पॉइंट थे। उन पॉइंटों में भी मैं बात करता हूँ। पहला जो पॉइंट था एनआईओएस डीएलएड के समय को लेकर के थे, यानी कि मानदंड और मान्यता और समय अवधि जो होती है एनसीटी के अधिनियम 1993 की धारा 14 के अंतर्गत होती है। तो यहाँ पर उसी को लेकर के एक बड़ा सवाल उठा कि एनआईओएस डीएलएड के समय को लेकर कि यह 18 माह का कोर्स है और जबकि एनसीटी के गजट 2010 के नोटिफिकेशन में 24 माह के डीएलएड की बात की गई है। तो ये इसमें डिफरेंस कैसा है कि इनके बीच में जो विरोधाभास है, डिफरेंस कैसा है, इसको लेकर के प्रश्न था। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात रही कि ये कोर्स इन सर्विस टीचर्स के लिए था, यानी कि इन सर्विस जो सेवारत शिक्षकों के लिए। फिर ऐसे अभ्यर्थियों को भर्ती में कैसे शामिल किया जा सकता है, तो इस बिंदु को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा एनआईओएस के एडवोकेट से क्रॉस क्वेश्चन भी किए गए और उन्हीं पॉइंटों के आधार पर अगली सुनवाई की तिथि भी तय की गई है। अब देखना यह है सवाल कि एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में रहेगा या बाहर होगा। और कल की जो एक सुनवाई के बारे में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा कि एनएमडी पर ये केस सुना जाएगा, नॉन एनएमडी पर ये केस
सुना जाएगा, यानी कि नॉन मिससेलेनियस डेज पर ये केस सुना जाएगा और ये जो केस है लंबा चलेगा और इसमें जो है कि केस में लगातार लंबी सुनवाई होंगी। तो ज़्यादा कुछ खास तो हुआ नहीं, आपने देख लिया होगा। यानी कि इस केस में आपको बता देता हूँ, सोमवार और शुक्रवार इस केस में सुनवाई नहीं हो पाएगी, केवल एनएमडी में ही इस केस को ज़्यादातर सुना जाएगा। तो अब यहाँ पर जो महत्वपूर्ण पॉइंट आया है, उस महत्वपूर्ण पॉइंट पर क्या कंक्लूजन निकला, ताकि ये मैं आपको बता देता हूँ। NIOS DLED इज ओनली 18 month कोर्स, दे आर नॉट completed 24 months. Why they are not eligible for new recruitment process? That was an one-time scheme for in-service teacher, not for new appointment. ये एक बड़ा क्रिटिकल कमेंट्स आया है कि नए अपॉइंटमेंट के लिए ये नहीं था, ये इन सर्विस टीचर के लिए था और ये वन टाइम सेटलमेंट था, वन टाइम स्कीम था। तो ये थोड़ा सा चौंकाने वाला पॉइंट था, जहाँ पर हम लोग भी उम्मीद लगा रहे थे कि NIOS DLED की जो भी है या उसकी ये अंतिम हियरिंग होगी और सीधा सीधा आज जो है कि कुछ दिनों के बाद इसमें जजमेंट आ जाएगा और जजमेंट आने के साथ साथ ये सीधे जो है कि प्राइमरी में इंटर हो जाएगा। लेकिन कल जो है कि कोड भी दूसरी थी, ये मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे थे वही कोड थी, वही कोड नहीं थी। तो जो नई कोड थी, नई कोड में ये इस तरीके का डिसीजन आया है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, हम लोग भी NIOS DLED से कनेक्टेड हैं। बहुत सारे लोग मेरा विरोध करते हैं क्योंकि मैं अधिकतर जिस तरीके की प्रक्रिया घूमती उस प्रक्रिया से आपको रूप कराने का प्रयास करता हूं। और आज भी मैं वही बता रहा हूं कि यहाँ पर ये कह दिया गया है कि ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है कि वन टाइम स्कीम है फॉर इन सर्विस टीचर, नॉट फॉर न्यू रिक्रूटमेंट या न्यू अपॉइंटमेंट। तो यहाँ पर ये बहुत बड़ा पॉइंट निकल कर के आ रहा है। इस पॉइंट को हमने देखना पड़ेगा कि NIOS DLED इज only 18 months course, they are not completed 24 months. That why they are not eligible for new recruitment process. That was one time scheme for in service teacher, not for new appointment. समझ गए? तो ये चीज़ कहा गया। तो यहाँ पर इन्होंने अपना 24 मंथ का कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, मतलब 18 मंथ का ये कोर्स है। हालांकि यहाँ पर जो स्कूल टीचिंग थी उसकी छूट थी कि 18 में 6 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जो है स्कूलों में पढ़ा रहे थे। तो ये कुछ चीज़ें बहुत अब जो है कि टकरा रही हैं, आपस में टकरा रही हैं। तो कंट्रोडक्शन इसमें आ रहा है। तो इस कंट्रोडक्शन के लिए क्या होता है क्या नहीं होता है, ये नेक्स्ट प्रोसेस में होगा। और जो लोग देख रहे थे या जान रहे थे, तो सीधी सी बात है कि भर्ती की प्रक्रिया का वीडियो भी मैं इस वीडियो में लगा दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और हम लोग भी इसी केस के साथ हैं, IA के माध्यम से जुड़े हैं। तो आज की ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो मैं निश्चित रूप से आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे वीडियो ही लाऊंगा और मेरा निरंतर प्रयास होगा। जो साथी NIOS DLED के हैं, जो लोग मुझे बार बार कॉल कर रहे हैं, मैंने उनको अवगत करा दिया है कि मैं B.Ed वाला हूं और ब्रिज कोर्स वाला हूं। फिर भी बहुत सारे बिहार से मेरे पास लगातार फ़ोन आते हैं कि सर क्या प्रोसेस हुआ क्या नहीं हुआ। कई लोग मुझे नंदन बोरा समझ रहे हैं। तो मैंने कहा सर नंदन बोरा जी दूसरे हैं और मैं अलग सुरेंद्र सिंह बोरा जी हूँ। तो मेरा केस मैं B.Ed वाला हूँ, मैंने उनको बता दिया। लेकिन फिर भी वो जानकारियाँ मांग, जितना मेरे तरफ से होता है कि सेटिस्फाई कर रहा हूँ मैं। और मैंने उनसे ये भी कह दिया कि सर देखिए, जो नोटिफिकेशन है उसमें ये भी लिया है द्विवर्षीय DLED मान्य हुआ, क्योंकि इनकी मार्कशीट में भी द्विवर्षीय DLED ही लिखा है। अगर द्विवर्षीय लिखा है तो ये नहीं कह सकते हैं कि ये 18 मंथ का, कि चाहे वो किसी भी नाम का हो। और दूसरी बात एक चीज़ बता देता हूँ, अगर ये 1 महीने का भी होता है तो वो समय सीमा तय करना, कानून बनाना ना कोर्ट का काम है। उसके लिए जो है कि पाठ्यक्रम कितने समय का होगा, कितने दिन का होगा। अगर वो 1 दिन का भी पाठ्यक्रम होता है, अगर NCT ने वो मान्य किया है तो वो मान्य रहेगा। ये मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर बता रहा हूँ, क्योंकि
एनसीटी इंडिपेंडेंट बॉडी है और टीचर जो सिलेक्शन प्रोसेस है या टीचर अपॉइंटमेंट के लिए जो भी रूल कंडक्ट करेगी वो एनसीटी करेगी, ना कि कानून करेगा। एनसीटी को ये अधिकार है कि वो टीचर के लिए नियम बनाए, क्राइटेरिया तय करे। तो अगर ये प्रशिक्षण 1 महीने का भी है, अगर एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, एनसीटी से जो है कि वैलिड है और ये जो है कि एनसीटी ने एलिजिबल कर रखा है, तो कोई भी कोर्ट इसको अनएलिजिबल नहीं कर रखा है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी कोर्ट इसको नकार नहीं सकती है। सवाल पूछा है, बड़ी सी बात कुछ नहीं है कि इसमें सिर्फ सवाल पूछा है। सवाल कोई भी जजेज कर सकते हैं, कोई भी एडवोकेट कर सकते हैं, कोई भी कोर्ट पूछ सकती है आपसे कि कोर्ट की तरफ से सवाल पूछा जा सकता है कि उस सवाल का हम क्या जवाब दें। ये तो हमें पता है कि क्योंकि कोर्स अगर 1 दिन का भी होता है, अगर वो एनसीटी से अप्रूव्ड है, एनसीटी ने 1 दिन के कोर्स को द्विवर्षीय डीएलएड लिख दिया है, तो वो द्विवर्षीय ही डीएलएड है। अगर 1 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, क्योंकि सबसे बड़ी बात बताओ, एनसीटी का गठन ही 1993 है। 1993 का जो एनसीटी अधिनियम है उसमें रूल, मानदंड, मान्यता, इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है। अगर जो साथी नहीं जानते, फिर भी मैं कहता हूं कि मुझे कॉल करें, मैं एनआईओएस डीएलएड वालों की भी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। जिन साथियों जो परेशान हो रहे हैं, नहीं तो मेरी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नंदन सिंह बोरा जी जो है कि सक्षम हैं और वो अपने केस को लड़ रहे हैं। बस उन्हें एक मजबूत आधार चाहिए, आर्थिक सपोर्ट चाहिए। उनको आप आर्थिक सपोर्ट करिए ताकि अच्छे से अच्छे वकील जो है कि वो उतार सकें और आपकी बात को रख सकें। इसी बात को कह रहा हूँ। और जो परेशान हो रहे हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि वो 1 दिन का भी अगर पाठ्यक्रम है, एनसीटी से वैलिड है, तो कोई भी उसे नकार नहीं सकता है। ये एक पॉजिटिव साइन है आप लोगों के। कोई भी ऐसा वीडियो में आपको नहीं बताएगा, क्योंकि बहुत सारे उत्तराखंड के एनआईओएस डीएलएड वाले तो मुझसे नफरत करते हैं, राजस्थान वाले जो बीएसटीसी वाले वो नफरत करते हैं, लेकिन हम नफरत की किसी भी चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। हमारा काम है कि प्यार बांटना, सारे अपने भाई बहन हैं, सबको रोज़गार की ज़रूरत है, सबको जॉब की ज़रूरत है, सब मेहनत करके आए हैं और मेहनत करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा प्रयास है कि सभी बच्चों ने मेहनत करी है, सभी बच्चे पढ़ के आए हैं, सभी का पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, सभी को जॉब की ज़रूरत है और सब एक अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। तो इसमें विरोधाभास वाली तो कोई बात ही नहीं है। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूँ कि आप जिस तरीके से विरोधाभास कर रहे हैं, लेकिन आपको इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा, चाहे वो डीएलएड के लिए वीडियो बनाता हो या चाहे वो प्रोफेशनल यूट्यूबर हो या हाई लेवल का यूट्यूबर हो, यानी कि इंडिया का नंबर 1 का यूट्यूबर हो। तो ये मेन पॉइंटों को आपको नहीं बताएंगे। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।